chapter 12, verse 13. दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थाम उपे शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वा अनुग्रहार्थाय विष्णुनां प्रभवी विष्णुना. The Brahmins said, the spotless sun has been restored. The spotless sun has been restored by all-powerful and all-pervasive Lord Vishnu, the personality of Godhead, in order to oblige you. He was saved when he was doomed to be destroyed by an irresistible supernatural weapon. Purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Anyone wants to read? I can read, Prabhuji. Yes. The child Parikshit was saved by the all powerful and all pervasive Vishnu, Lord Shri Krishna, for two reasons. The first reason is that the child in the womb of his mother was spotless due to his being a pure devotee of the Lord. The second reason is that the child was the only surviving male descendant of Puru, the pious forefathers of the various King Yudhishthir, Virtuous. virtuous King Yudhishthir. The Lord wants to continue the line of pious kings to rule over the earth as his representatives for the actual progress of a peaceful and a prosperous life. After the battle of Kurukshetra, even up to the next generation of Maharaj Yudhishthir was annihilated, and there were none who could generate another son in the great royal family. Maharaj Parikshit, the son of Abhimanyu, was the only surviving heir apparent in the family, and by the irresistible supernatural Brahmastra weapon of Ashwadhama, he was forced to be annihilated. Lord Krishna is described herein as Vishnu, and this is also significant. Lord Krishna, the original personality of Godhead, does the work of protection and annihilation in his capacity of Vishnu. Lord Vishnu is the plenary expansion of Lord Krishna. The all pervasive activities of Lord are executed by him in his Vishnu feature. Child Parikshit is described here as spotlessly while white because he is an unalloyed devotee of the Lord. Such unalloyed devotee of the Lord appear on the earth just to execute the mission of the Lord. The Lord desires the conditioned soul hovering in the material creation to be reclaimed to go back home back to Godhead. And thus, he helps them by preparing the transcendental literatures like the Vedas, by sending missionaries of saints and sages, and by deputing his representatives, the spiritual masters. Such transcendental literatures, missionaries, and representatives of the Lord are spotlessly white because the contamination of the material qualities cannot even touch them. They are always protected by the Lord when they are protected by the Lord when they are threatened with annihilation. Such foolish threats are made by the gross materialist. The Brahmastra, which was thrown by the Ashwadhama at the child Parikshit, was certainly supernaturally powerful, and nothing of the material world could resist its force of penetration. But the all powerful Lord, who is present everywhere, within and without, could counteract it by his all powerful potency just to save the bona fide servant of the Lord and descendants of another devotee. Maharaj Yudhishthir, who was always devotee Maharaj Yudhishthir, who was always obliged by the Lord by his causeless mercy. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Mataji. All right. So let's see what they're saying here. So the Brahmana said, this spotless sun has been restored by all powerful and all pervasive Lord Vishnu. So now the question can come, how do Brahmanas know that?
Because apart from Parikshit Maharaj, no one else saw Vishnu or Krishna coming size of thumb in the womb of Uttara. किसी को नहीं दिखा था वो। ब्राह्मण उस टाइम पे, ये ब्राह्मणों की यू कैन सी के उनकी कितनी पोटेंसी थी उस टाइम के ब्राह्मणों की, दैट दे नो एवरीथिंग, ऑल्दो दे डिड नॉट सी हिम डायरेक्टली, बट दे न्यू के भगवान विष्णु ने खुद आकर उसको बचाया। और नॉट ओनली दैट, दे आर ऑल्सो टेलिंग द रीजन कि क्यों बचाया। टू रीजंस क्या है? टू रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज दैट द चाइल्ड the first reason is that the child in the womb of his mother was spotless. He was spotless due to being pure devotee of the Lord. Because spotless क्यों था वो? Because he was the pure devotee of the Lord. Unalloyed, यहाँ पर प्रभुपाद ने बोला ना, such unalloyed devotees of the Lord appear on the earth just to execute the mission of the Lord. Unalloyed, unalloyed का क्या मतलब होता है? एलॉय जो होता है ना, एलॉय साइंस में अगर आप देखो तो दो एलिमेंट्स को मिक्स करके बनता है, which means mixed devotees. Now, who are we? We are mixed Us. devotees. Sorry, Mataji. That's us, Prabhuji, the mixed. Yeah. So we are mixed devotees. क्यों? थोड़ा सा मजा भी चाहिए, थोड़ा सा भगवान का नाम भी चाहिए। कूल हॉलीडेज आई हैं, जुरासिक पार्क लगी हुई है, बच्चों के नाम पे थोड़ी सी उसकी भी पर्ची फाड़ के भी देख, तो साथ में भक्ति भी करनी है। तो ये दीज ऑल थिंग्स, और वी आर टीयरिंग अस ourselves apart, right, by doing both the things together. It should be unalloyed. We'll discuss more on that today. What is unalloyed bhakti? So then he's saying spotless. That is why he's spotless, because he's an unalloyed devotee. Child Parikshit is described here as spotlessly white because he is unalloyed devotee of the Lord. और कोई material contamination नहीं उसको टच करी है। मटेरियल, इसको कंटेमिनेशन बोल रहे हैं प्रभुपाद। देख रहे हो, जो हम मटेरियल मजे लेते हैं उसको कंटेमिनेशन बोल रहे हैं प्रभुपाद। सो हैवी, इज सो हैवी, राइट? कि इज कंटेमि दिस ये मटेरियल एनर्जी इज कंटेमिनेटिंग अस, राइट? एंड सेकंड रीजन वो क्या बता रहे हैं कि ही इज ओनली सर्वाइवर, ही इज द ओनली सर्वाइविंग मेल डिसेंडेंट। क्योंकि अगर ये चला जाता तो आगे उनका वंश नहीं बढ़ता, क्योंकि दिस इज एनी वे द सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट वाली भी खत्म हो चुकी थी, पांडवों के सभी पुत्र मर चुके थे। ठीक है, अभिमन्यु, अभी ये कौन है? परीक्षित महाराज अभिमन्यु के पुत्र हैं। तो पांडवों के जितने भी पुत्र थे वो सब मर चुके थे। कौरवों के तो सब कौरव भी मर गए, उनके पुत्र पौत्र सब मर गए थे। 5 जनरेशन फाइट कर रही थी महाभारत। ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, देन फादर, देन चिल्ड्रन, एंड देन ग्रैंड चिल्ड्रन। 5 जनरेशन वर फाइटिंग, एंड सारी की सारी खत्म हो गई थी। कौरवों के साइड पे सब खत्म हो गई थी, सिर्फ धृतराष्ट्र बचे थे उधर से। धृतराष्ट्र, हाँ, धृतराष्ट्र एनीवे ही कुडंट डू मच। और इस साइड पे सिर्फ पांडव बचे थे, पांडवों के सभी पुत्र भी मर गए थे। और उसके बाद ये अभिमन्यु, ही वाज अ ग्रैंड सन, बेसिकली ग्रैंड सन ऑफ युधिष्ठिर महाराज। तो अगर ये भी चला जाता तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि देयर वाज नन हु कुड जनरेट अनदर सन। रॉयल फैमिली, ग्रेट रॉयल फैमिली खत्म हो जाती, राइट? एंड द लॉर्ड, लॉर्ड वांट्स टू, लिखा था ना यहाँ पर, अभी कहा था, लॉर्ड वांट्स टू कंटिन्यू द लाइन ऑफ पायस किंग्स। क्यों लिखा प्रभुपाद ने कि व्हाई लॉर्ड वांट्स टू कंटिन्यू द लाइन ऑफ पायस किंग्स? क्यों चाहिए पायस किंग? एनी आइडिया? पायस किंग्स क्यों चाहिए? जिससे दैट जनता भी उनको लीड करे, जनता भी उनको फॉलो करेगी ना। हम्म, पायस किंग would rule over the earth as his representatives. his का या h जो है वो कैपिटल है, मतलब एज लॉर्ड्स रिप्रेजेंटेटिव। सो राजा जो होता है, राजा भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अभी जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं,
ऑस्ट्रेलिया के या इंडिया के, वो कौन है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इज इट द केस? इज इट द केस? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पायस किंग्स हैं, जो हैं वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एंड एक्चुअल फॉर द, क्यों है, लॉर्ड वांट्स दिस, व्हाई ही वांट्स, फॉर द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। तो क्या, अब हम आजकल के, पहले तो चलो पहले चलते हैं कि क्या आजकल के किंग्स पायस किंग्स हैं, और वो क्या कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं? आर दे बिल्कुल इवन नहीं पायस? प्रभु जी, माया के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अगर वो माया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो ये क्या हमारी लाइफ पीसफुल और प्रॉस्पेरस नहीं है? तो उन्होंने बोला है कि पायस किंग्स होंगे तो पीसफुल और प्रॉस्पेरस लाइफ होगी। किंग्स तो पायस नहीं है, ये तो फॉर श्योर है, किसी भी कंट्री का किंग पायस नहीं है, रादर दे आर डिक्टेटर्स, रोग, है ना? कोई भी कंट्री उठा के देख लो, मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंट्रीज के भी अब तो इवन। तो तो फिर क्या हमारी लाइफ पीसफुल और प्रॉस्पेरस नहीं है क्या? स्पिरिचुअली नहीं है प्रभु, मटीरियली यस। हम्म। हम्म। आई डोंट सी माई सेल्फ एज प्रॉस्परस स्पिरिचुअली। हम्म। तो तभी एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है प्रभुपाद ने, एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। एक्चुअल, एक एक वर्ड अगर हम पढ़ेंगे ना, इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस देन विल कम टू नो के वाओ। सो प्रभुपाद ने कितना सोच के लिखा है। खाली उन्होंने ये नहीं लिखा कि प्रोग्रेस ऑफ पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। हाँ, हम बोल सकते हैं ना कि हाँ, अब बहुत प्रोग्रेस हो रही है, हमारी प्रॉस्पेरस लाइफ है, हमारी पहले एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, अब हमारी चार हो गई हैं, ठीक है, हमारी पीसफुल है लाइफ, हमारे रोज रोज कोई हमारे घर रॉबरी करने नहीं आ रहा है, राइट? सो ऐसा तो नहीं है, बट इज इट एक्चुअली द प्रोग्रेस? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रोग्रेस। ऑन अ लार्ज, on a high level, is our life prosperous? No. We, every 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 setting and rising of the sun, ayur harti vaipunsam, every setting and rising of the sun, our life is going away. We are dying every day. Every day we are closer to death. And are we peaceful? Yes, कोई ऐसे हमें थप्पड़ नहीं मार रहा रोज आके, बट हमारा माइंड कितना टर्बुलेंट है। हाउ मच टर्बुलेंट आर वी? कोई अगर हमें हरे कृष्ण नहीं बोलता है, कोई अगर हमें हेलो नहीं बोलता है, हम कितने एजिटेट हो जाते हैं। कोई हमें इंसल्ट कर दे, कितने एजिटेट हो जाते हैं, राइट? व्हाई दिस ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग? बिकॉज द किंग्स आर नॉट पायस। द किंग्स आर नॉट पायस एंड लॉर्ड वांट्स, भगवान चाहते थे कि पायस किंग्स रूल करें अर्थ को। बट जैसे जैसे कलयुग आएगा, कलयुग की ये वन ऑफ द प्रोफेसी है ये, कलयुग में, कि कलयुग में देयर विल नॉट बी एनी पायस किंग्स। भागवतम, आई विल शो यू, भागवतम में 12th 12th कैंटो में इट इज मेंशन। 12th कैंटो भागवतम का है, जिसमें सारी प्रिडिक्शंस हैं बेसिकली, राइट? So one of the prediction is the citizen governed by these low class kings will imitate the character, behavior and speech of their rulers. यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा, जैसे राजे का लूज कैरेक्टर होगा, जैसा उसका बिहेवियर होगा, जैसी उसकी स्पीच होगी, वैसे ही प्रजा की होगी। एंड harassed by their leader and by each other, they, they will all suffer ruination. Can you imagine? श्रीमद् भागवतम इज टेलिंग दैट हरासमेंट होगी लीडर्स के हाथों से। अभी हम देख ही रहे हैं इंडिया में क्या क्या हो रहा है, वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, ठीक है, और जगह पर क्या हो रहा है, हरासिंग, एंड वी आर हरासिंग ईच अदर एज वेल, एंड सो क्या होगा, वी ऑल सफर रुइनेशन। सो जो हमें बाहर से लगता है कि पीसफुल और प्रॉस्पेरस लाइफ है, इफ वी लुक अ लिटिल डीप, तो हमें पता चलेगा कि हम कितनी प्रॉस्पेरस लाइफ जी रहे हैं, और क्या कर रहे हैं हम अपने साथ। हमें सिर्फ एक ही एस्पेक्ट दिख रहा है हमारा, सक्सेस का सिर्फ एक ही पैरामीटर दिख रहा है, पैसा। कितना पैसा है हमारे पास, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना बैंक बैलेंस है, बट स्पिरिचुअल बैलेंस कितना है? नो वन इज
bothered about it. So that is the actual progress, right? And Krishna wants us to have that prosperous life, not this materialistic prosperous life, because this is what contamination, right? So now another point from which is coming is that it has to be noted that uh, Krishna is described here, Lord Krishna is described herein as Vishnu, right? Not Krishna. Or Krishna उस टाइम पर he was personally present, right? With the क्योंकि कुरुक्षेत्र की वॉर हुई थी, अभी उनके साथ ही थे. He was personally present, Krishna, on that planet, on Earth, planet Earth. Still, वो क्या बोल रहे हैं, ब्राह्मणा बोल रहे हैं कि he is protected by Lord Vishnu. Why? Why? Why it is mentioned Lord Vishnu, not Krishna? Any clue? लिखा हुआ है इसी में आंसर. Because Lord Krishna, the original personality of Godhead, does not work for, does the work of protection and annihilation in his capacity of Vishnu. Krishna himself, he can if he wants to, but वो किस में करते हैं? In the form of Vishnu. तभी अब भी परीक्षित महाराज को बचाने के लिए वो विष्णु फॉर्म में आए थे, खुद से नहीं आए थे. वो गले में वैजंती माला और हाथ में फ्लूट पकड़ के नहीं आए थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. गजेंद्र को प्रोटेक्ट करने वो अगेन लॉर्ड विष्णु के, राइट? सो सो लॉर्ड विष्णु केम, राइट? सो लॉर्ड विष्णु कौन है? इज द प्लेनरी एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा. सो जितने भी, तभी हमें हमें इफ स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, जब भी प्रोटेक्शन की बात आती है, we either go to, like, Vishnu is the maintainer anyways, and usually हम किसके पास जाते हैं? लॉर्ड नरसिंह देव के पास, because that's his expansion through which he protected प्रहलाद महाराज. ठीक है? तो तब भी जैसे कोई हॉस्पिटल में है या एडमिट है, तो हम क्या करते हैं? नरसिम्हा यज्ञ रखवा लो, नरसिम्हा कवच पढ़ लो, राइट? सो डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंशंस हैं. देयर इज अ रीजन why we go to them, because Krishna, we don't disturb Krishna, who is like uh, जिनका काम ये नहीं है, के लिए उनके पास जाना है only for love. If we want to have loving exchanges, then yes, Krishna is there. But for everything else, they have different plenary expansions, different avatars. You can go to them. But अगर आपको सिर्फ सिर्फ भक्ति चाहिए, भक्ति के लिए go to him. Protection के लिए you can also go to him, but he will send only his plenary expansions. Like in this case, Vishnu came, not Krishna, right? Because he does the work of protection and annihilation in his capacity of Vishnu. Simple. Does that make sense? Any points, questions so far? Else we'll move to the next verse. All right, let's go. Verse number 17. तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान्. For this reason, the child will be well known in the world as one who is protected by the personality of Godhead, Vishnu Rat, protected by Vishnu. इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? परीक्षित महाराज का नाम क्या है? विष्णु रात. Oh, most fortunate one, there is no doubt that this child will become first class devotee and will be qualified with all good qualities. तो हमारे भी जब बच्चा होता है तो उसकी कुंडली बनाते हैं, ब्राह्मण को दिखाते हैं,
तो वो फिर वो कुंडली देख के बताता है कि वाह, ये तो फर्स्ट क्लास डिवोटी बने। हम्म, वही वो ब्राह्मण बता रहे हैं अब कि देर इज नो डाउट, क्यों, ही इज विष्णु रात, विष्णु हिमसेल्फ केम टू प्रोटेक्ट हिम, so there is no reason why he will not be a devotee, first class devotee. Let's see. Purport. Anyone wants to read? मैं वापस पढ़ लूं प्रभु जी? हाँ जी, हाँ जी माता जी। The Lord gives protection to all living beings because He is their supreme leader. The Vedic hymns that confirm that the Lord is supreme personality amongst all personalities. The difference between the two living beings is that the one, the personality of Godhead, provides for all other living beings, and by knowing Him, one can achieve eternal peace. Katha Upanishad, such protection is given by his different potencies to different grades of living beings. But as far as his unalloyed devotees are concerned, he gives the protection personally. Therefore, Maharaj Parikshit is protected from the very beginning of his appearance in the womb of his mother. And because he is especially given protection by the Lord, the indication must be concluded that the child would be a first great devotee of the Lord with all good qualities. There are three grades of devotees, namely the Mahabhagavata, Madhyamadhikari, and the Kanishta Adhikari. Those who go to the temple of the Lord and offer worship respect the deities without sufficient knowledge in the in the theological science, and therefore without any respect for the devotees of the Lord, are called materialistic devotees, a Kanishta Adhikari, the third grade devotees. Secondly, the devotees who develop a mentality of genuine service to the Lord and who thus make friendship only with the similar devotees, show favor to the neophyte, and avoid the atheist are called the second grade devotees. But those who see everything in the Lord or everything of the Lord, and also see in everything an eternal relation of the Lord, so that there is nothing within their purview of sight except the Lord, are called the Mahabhagavatas, or the first great devotees of the Lord. Such first great devotees of the Lord are perfect in all respect. A devotee who may be in any of these categories is automatically qualified by all good qualities, and thus a Mahabhagavata devotee like Maharaj Parikshit is certainly perfect in all respects. And because Maharaj Parikshit took his birth in the family of Maharaj Yudhishthir, he is addressed herein as the Mahabhagavata, or the fortunates greatest of the fortunates. The family in which a Mahabhagavata takes his birth is fortunate because, due to the birth of first great devotee, the members of the family, past, present, and future, up to the 100 generations, become liberated by the grace of the Lord. Our respect for his beloved devotees. Therefore, the highest benefit is done to the one's family simply by becoming an unalloyed devotee of the Lord. Hare Krishna. Hare Krishna. All right. So अभी क्या बता रहे कहने हैं से वो कि शिला प्रभुपाद की जय में कितना कितना ब्यूटीफुली लिखा है ना। एग्जैक्टली, एक वर्ड हम सोच भी नहीं सकते कि प्रभुपाद ने कितना लिखा है, कितना लिखा है। अभी पता नहीं, कल परसों कोई बोल रहा था मुझे कि कुछ तो बोल रहा था मैं, तो उसके जवाब, मुझे अपना जवाब याद है, उसका क्वेश्चन नहीं मुझे याद, कि मैं बोल रहा था कि प्रभुपाद ने, हाँ, भागवत को लेके कोई बात कर रहा था शायद, कि भागवतम इतनी बड़ी, हाँ, कोई बोल रहा था कि इंडिया में भागवतम जो है वो एक एक बुक मिलती है जनरली, एक बुक हो गई, तो यहाँ पे देर आर 20 वॉल्यूम्स। तो कोई बोल रहा था, कहते ये इस्कॉन की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो नहीं है, इतनी सारी बुक। मैंने कहा कम ऑन, मैंने कहा प्रभुपाद ने इतनी, इतना कौन लिखता है। मैं कहा उस टाइम पे तो दैट टू एट द टाइपराइटर, एज ऑफ 70 प्रभु जी। एट द एज ऑफ 70, रात को 2 बजे उठ के कौन लिखता है इतना।
ठीक है, और वो भी टाइपराइटर पे। उससे पहले तो टाइपराइटर भी नहीं था, हाथ से लिखते थे। बड़ी मुश्किल से टाइपराइटर जुड़ा, उस पे लिखा है उन्होंने इतना, इतना इतना। कैसे, हाउ कैन समवन, किसी के पास इतने थॉट्स और इतने आइडियाज और इतना रियलाइजेशंस हो ही नहीं सकते। तो तभी तो वो एक दो बुक में हो जाता है। यहाँ पर वो बोल रहे थे तो, कि मैं बोल रहा था कि भागवतम खरीद लो, तो उन्होंने कहा कि इतनी सारी बुक्स का कैसे कैसे खरीदें हम, इतनी सारी बुक्स हमसे पढ़ी नहीं, क्योंकि इट इज इंटिमिडेटिंग। किसी को भी बोलोगे वो कहेगा अरे पूरा डब्बा ये मैं कैसे पढ़ूंगा। तो बट, तो मैंने कहा ये भागवतम इज नथिंग बट कृष्णा हिमसेल्फ, सो यू कांट टेक इन पार्ट, कि मैं एक पार्ट ले लूं कृष्णा की, आम ले जाता हूँ मैं आज, कल मैं कृष्णा की टांग ले जाऊंगा। नो, इट हैज टू बी टेकन टुगेदर, राइट। और पढ़ो, आएगी तो पढ़ी जाएगी। सो वी शुड, प्रभुपाद ने ही बोला था कि इफ यू वांट टू प्लीज मी, प्लीज रीड माय बुक्स स्क्रूटनाइजिंगली, इफ यू रीड माय बुक्स स्क्रूटनाइजिंगली, आई विल बी प्लीज। देखो प्रभुपाद को प्लीज करना कितना आसान है, रीडिंग द बुक स्क्रूटनाइजिंगली। खुद बोल रहे हैं कि मेरी बुक्स को स्क्रूटनाइजिंगली पढ़ो और उन पे क्वेश्चंस पूछो, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए प्रभुपाद का क्या मूड था, राइट। सो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि लॉर्ड गिव्स प्रोटेक्शन, ये तो हमें पता है, सबको प्रोटेक्शन देते हैं वो। अब उसमें क्या बात कर रहे हैं हम? एक लाइन थी यहाँ पर, हाँ, he gives personally, he gives as far as his unalloyed devotees are concerned, he gives the protection personally, right। और इसमें हमें वो बीरबल और अकबर की कहानी याद है। तो अकबर ने पूछा कि क्या तुम्हारा भगवान खुद आता है बचाने, उसके पास काहे का भगवान हुआ वो, अगर उसको खुद ही आना पड़ रहा है हर जगह बचाने के लिए, ठीक है, उसके पास कोई सेना नहीं है, कोई है नहीं जो जो बचा सके। तो बीरबल ने सुन लिया, कहता चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, एक बार ऐसे ही वो पिकनिक मनाने गए थे, तो उसके ग्रैंड सन्स ग्रैंड किड्स भी थे अकबर के। तो बीरबल ने क्या किया, एक डॉल बनाई, बिल्कुल उसके ग्रैंड किड जितनी छोटी सी। तो उसमें उसने ना उसको बीरबल अकबर के सामने पानी में फेंक दिया। अकबर ने ना इधर देखा उधर देखा, इमीडिएटली ही जंप, और उसने उसको डॉल को बाहर निकाला। एंड देन ही वॉज वेरी एंग्री, ही सेड बीरबल क्या है ये, क्या बदतमीजी है ये, तुमने मेरे बच्चे को फेंका, और मुझे, और इट वाज अ डॉल एक्चुअली, सो व्हाट वाज दैट। तो ही सेड महाराज इट वाज एन आंसर टू योर क्वेश्चन। जब आपको इतने सारे आपके सिपाही हैं आसपास, आपने उनको ऑर्डर क्यों नहीं दिया कि मेरे बच्चे को, मेरे ग्रैंडसन को इसमें से निकालो। यू इमीडिएटली जम्प्ड। दिस इज द लव ऑफ लॉर्ड कृष्णा फॉर अस, दैट he personally protects, he krishna is a very personal sentient being। हमें ये जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा ना, उतनी ज्यादा हम जल्दी भक्ति में प्रोग्रेस कर लेंगे, कि ही इज वेरी वेरी पर्सनल विद यू, विद यू, विद यू, विद यू, ऑल ऑफ अस। पर्सनल कनेक्शन है कृष्णा का हर एक के साथ। जब कृष्णा अपने गांव, अपनी काउस को वो लेके जाते थे जंगल में घास चराने के लिए, तो एक एक घास के तिनके पर जब वो पैर रखते थे, एक एक के साथ उनका पर्सनल टच हो रहा था, घास के तिनके के साथ। जब वो गोपियों के साथ डांस कर रहे थे, तब भी एक एक गोपी को लगता था कि वो सिर्फ मेरे साथ डांस कर रहे हैं। जब वो 16,108 रानियों के साथ थे अपने द्वारका में, अपने महल में, हर एक को किसी को ये नहीं लगता था, उनको लगता था कि कृष्णा अभी मेरे पास ही आ रहे हैं, ही इज माइन। इतना ज्यादा पर्सनल कोई हो सकता है, नो, बट कृष्णा इज वेरी वेरी पर्सनल। बट अनफॉर्चुनेटली हाउ डू वी ट्रीट हिम, इम्पर्सनली। शुरू शुरू में मैं इस्कॉन आया तो मैंने ये वर्ड ज्यादा सुना नहीं था, इम्पर्सनल। तो इस पे इतना ज्यादा इम्पर्सनल, कृष्णा इज नॉट इम्पर्सनल, पर्सनल है, इट इज इम्पर्सनल ब्रह्मन एफलजेंस, ये वो इतनी बात होती थी। तो मैंने कहा यार इसमें इतना इतना डिस्कशन करने वाली क्या बात है, कि पता ही है कि कृष्णा पर्सनल है, कि ही इज नॉट इम्पर्सनल, कि वो लाइट नहीं है। तो बीइंग कमिंग फ्रॉम इंडिया, आई मीन एवरीवन एग्रीज टू इट, राइट, कि ही इज अ पर्सन। तो देन
I asked this question, then Prabhu said, he said कि ओके, आपके घर पे डीटीज हैं? मैंने कहा हाँ है। तो कहते, आप क्या घर में जब आप ऑफिस से आते हो, क्या आप उनको पर्सनली ट्रीट करते हो? क्या आप उनके पास जाके उनको हेलो बोलते हो कि हाँ मैं ऑफिस से आ गया हूँ? या क्या आप हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं होती? अगर आपके घर में कोई पर्सनली प्रेजेंट हो, व्हाट विल यू डू? यू बिहेव, राइट? आप अपने बच्चों को नहीं डांटते हो कि चलो कोई कोई बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग है या कुछ भी है, यू बिहेव। बट डू वी बिहेव इन अवर हाउस? Because we think that he is impersonal, he is not there, right? But whereas Krishna, if we treat him personally, it's up to us, right? Then he gives us protection personally. And then Prabhupada is telling about, and it is saying, यहाँ पे लिखा है ना उन्होंने कि he is a फर्स्ट क्लास डिवोटी। ब्राह्मण बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज इज अ फर्स्ट क्लास डिवोटी। अब बोलोगे कि कोई थर्ड क्लास डिवोटी भी होता है क्या? आंसर इज यस। देयर आर थ्री ग्रेड्स ऑफ डिवोटीज। फर्स्ट क्लास डिवोटी इज कॉल्ड महाभागवत, और उत्तम अधिकारी, राइट? एंड देन सेकंड इज मध्यम अधिकारी, एंड देन इज कनिष्ठ अधिकारी। नाउ प्रभुपाद उनकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। दोज हु गो टू द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड एंड ऑफर worshipful respect to the deity without the sufficient knowledge in the theological science, and therefore without any respect of the devotees, are called the materialistic devotees, or the kanisht adhikari, the third grade devotees. So third grade devotees क्या होते हैं? वो बोलते हैं बस मैं और मेरा भगवान, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। तुम ये डिवोटी डिवोटी सब भाड़ में जाओ, हम कोई कोई डिवोटीज की कोई रिस्पेक्ट नहीं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मुझे पता है। ओनली गिविंग रिस्पेक्ट डीटीज एंड नॉट गिविंग एनी रिस्पेक्ट टू डिवोटीज, और इनसफिशिएंट नॉलेज, विदाउट सफिशिएंट नॉलेज, ठीक है? उनको कोई नॉलेज नहीं होती, उनका फेथ भी कम होता है, पर मंदिर वो रोज जाते हैं, ठीक है? भगवान को ओबेसेंसेस पे करने रोज जाते हैं। जो फेलो डिवोटीज हैं या जो फेलो फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, और नॉलेज उनको कम होती है। दीज थ्री पैरामीटर्स हैं विच आर कॉल्ड मटीरियलिस्टिक और थर्ड क्लास और कनिष्ठ अधिकारीज। काफी लगता है ना कि हम अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। सो सेकंड 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 ग्रेड के डिवोटीज कौन है? दोज हु हैव डेवलप्ड द मेंटेलिटी ऑफ जेन्युइन सर्विस टू द लॉर्ड। उनको सिर्फ ऑल्टर पे चढ़कर वो आरती नहीं घुमानी है, जेन्युइन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, ठीक है? अगर आपको हमें मिल भी जाए ना ये आरती घुमाने के लिए, हमारा वो मूड ही नहीं बैठेगा, क्योंकि हमें हम वही काउंट करने में लगा रहूंगा। मैं तो कि अच्छा ये 3 बार ये था, 2 बार ये था, 4 बार ये था, ये सही से हो गया, ये सही से हो गया। मूड इज जीरो। वेयर एज जो सेकंड क्लास डिवोटीज हैं, दे डेवलप द मेंटेलिटी ऑफ जेन्युइन सर्विस टू द लॉर्ड। इट डज नॉट मैटर कौन सी सर्विस मिल रही है, क्या क्या मुझे ऑल्टर पे चढ़कर सर्विस मिल रही है, या मुझे जो बिन्स पूरी तरह भर गए हैं प्लेट्स प्लेट्स के साथ, उनको खाली करने की सर्विस मिली है, या मैं खुद देख रहा हूँ कि वो भरे हुए हैं, तो मैं खुद से उनको खाली करके बड़ी बिन में डाल दूं और उसको दूसरी उसमें मैं वो लगा दूं बिन लाइन। तो दैट मेक्स अस सेकेंड काइंड ऑफ डिवोटी। और उनकी क्या है, नॉलेज भी थोड़ी बढ़ जाती है, फेथ भी जो है उनका थोड़ा बढ़ा होता है एज कंपेयर टू कनिष्ठ अधिकारी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, they know how to deal with devotees, who thus makes friendships only with similar devotees. प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, फ्रेंडशिप विद सिमिलर डिवोटीज। सिमिलर डिवोटीज मतलब पीयर्स, आपके जो पीयर्स हैं उनके साथ वो क्या करते हैं, फ्रेंडशिप। यूजुअली क्या होता है, जो पीयर्स होते हैं उनके साथ सबसे मुश्किल होती है फ्रेंडशिप करनी। यूजुअली क्या होता है, जो हमसे सीनियर्स हैं उनके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है, क्यों? हम कहते हैं प्रभु जी करते रहते हैं। जो हमसे जूनियर होते हैं
वो हमें प्रभु जी कर रहे होते हैं तो उनके साथ भी फ्रेंडशिप अच्छा लगता है। कोई हमें भी ऐसे बोले, हाँ प्रभु जी आप तो बहुत बढ़िया हो, ठीक है, तो दोनों के साथ हमारे बढ़िया रहते हैं रिलेशनशिप। लेकिन जो हमारे पियर्स होते हैं, वो हमारी ईगो क्लैशेस होते हैं उनके साथ। तो इसीलिए हमें मैक्सिमम टाइम हमारे जो पियर्स हैं उनके साथ बिताना चाहिए। ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में ही इट इज मेंशन्ड। 60, 60-20-20 ये रेशो होनी चाहिए। 60% ऑफ योर टाइम यू शुड स्पेंड विद योर पियर्स, 20% विद योर सीनियर्स एंड 20% विद योर जूनियर। राइट। सो जो मध्यम अधिकारी है उसको ये पता होता है, कनिष्ठ तो करता ही नहीं है, वो तो बोलता है बस मैं और मेरा भगवान, बस बाकी सब बेकार। ठीक है। अब ये क्या है, इनको जब तुम मध्यम अधिकारी बन जाते हो भक्ति करके और जेन्युइन सर्विस करके, तब हमें पता लग जाता है प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। प्रेम किसके साथ करना है? अपने से जो सीनियर्स हैं उनके साथ प्रेम, उनके साथ वी शुड हैव अफेक्शन लव फॉर देम। मैत्री, मैत्री किसके साथ? फ्रेंडशिप किसके साथ? पियर्स के साथ। प्रेम मैत्री कृपा, शो फेवर टू नियोफाइट्स, यहाँ लिखा है ना कृपा। जो अभी नए नए भक्ति में आए हैं, डजेंट मैटर उनका कैसा बिहेवियर है, वो क्या कर रहे हैं, यू हैव टू शो फेवर टू देम, यू हैव टू शो कृपा टू देम। प्रेम मैत्री कृपा एंड उपेक्षा। उपेक्षा किसकी करनी है? अवॉइड द एथीस्ट, एथीस्ट को अवॉइड करना। एथीस्ट कौन है? वो है एथीस्ट जिसको बोलो कि भगवान एग्जिस्ट करता है, वो बोलता है नहीं करता। ठीक है। तो इफ यू स्टिल कीप ऑन पुशिंग दैट पर्सन, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कमिटिंग ऑफेंस। कौन सा ऑफेंस है? ऑफेंस नंबर 8, टू इंस्ट्रक्ट अ फेथलेस पर्सन अबाउट द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। So we should not preach or to a faithless person, to an atheist. So these are, this is on this principle second grade devotee works, right? So जितनी भी preaching जो करते हैं, so those have to follow, those people have to come to this madhyam adhikari level so that they can discriminate, right? Discrimination is important so that you can preach accordingly, right? Now, but those who see everything in the Lord or everything of the Lord and also see everything as an eternal relation to the Lord, so there is nothing within their purview of sight except the Lord, is called Mahabhagavad. इन सिंपल टर्म्स, महाभागवत वो होता है जो जितने भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जैसे कल भूरिजन महाराज आए थे, तो ही इज महाभागवत, ही इज फर्स्ट क्लास डिवोटी, बिकॉज ही डजंट सी एनीवन एज कनिष्ठा और एज एनीवन एज मध्यमा, और वो ऐसी वो डिस्टिंग्विश भी नहीं करते प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा के बीच में। चाहे एथीस्ट आ जाए उनके सामने, चाहे कोई डिवोटी आ जाए, चाहे बड़ा डिवोटी, सीनियर डिवोटी, जूनियर डिवोटी, एनी कोई भी आएगा उसके अंदर वो उसको भगवान ही देखेंगे उसके अंदर। दैट्स वाई फॉर द प्रीचिंग पर्पसेस दीज उत्तम अधिकारीज, दे come down, they have to come down to the level of madhyam adhikari just for preaching, but otherwise they are uttam adhikari. They don't distinguish, they don't discriminate between the devotees, right? So these are the महाभागवत, and these are, अभी क्या क्या बोल रहे हैं वो कि अगर कोई फर्स्ट ग्रेड डिवोटी हमारी लाइफ में आ जाता है या हमारी फैमिली में आ जाता है, तो क्या होगा? 100 जनरेशन। इमेजिन, प्रभुपाद ने 100 जनरेशन लिख दिए। राइट। तो मेरे घर वाले भी बोलते हैं, कहते तू ही बन जा, तू भक्ति कर ले, उस हमें भी कुछ फायदा मिल जाएगा उससे। मैंने कहा ऐसा, पहली बात तो मैं नहीं बनने वाला ऐसा महाभागवत, और दूसरी बात तुम्हें भी करना है कुछ, ऐसे नहीं होगा। बट प्रभुपाद इज गिविंग सो मच होप दैट अगर कोई कर लेता है तो उसकी 100 जनरेशन बिकम लिबरेटेड। क्यों लिबरेट होती हैं? बिकॉज बाय बिकमिंग एन अनएलॉयड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। एंड व्हाट इज अनएलॉयड डिवोटी? वो हमें नेक्टर ऑफ डिवोशन में हमें क्या बताया? अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा।
तो अनएलॉयड डिवोटी क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्य। शून्य मीन्स जीरो। नो अदर डिजायर, नो मेटीरियल डिजायर। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलम वर्जन। जो हमारी भक्ति होनी चाहिए वो फेवरेबल होनी चाहिए। ठीक है, भक्ति मीन्स वी शुड सिंपली एक्सेप्ट व्हाट इज फेवरेबल फॉर कृष्ण एंड व्हाट इज नॉट फेवरेबल टू कृष्णा, दैट वी शुड रिजेक्ट। अब अर्जुन, भगवत गीता में हम पढ़ रहे हैं ना, तो अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन की एग्जाम्पल क्या थी? इन द बिगिनिंग अर्जुन क्या कह रहा था? मुझे नहीं लड़ना है। क्यों? क्योंकि ही वॉज थिंकिंग फेवरेबली फॉर हिज ओन सेंसेस। मेरे रिलेटिव, मेरे भाई, मेरे ग्रैंडफादर, मेरा गुरु, मेरी जीत से मुझे क्या फायदा होगा? मैं। दैट वाज नॉट फेवरेबल टू कृष्ण। बट कृष्णा ने क्या कहा? इट्स योर ड्यूटी बिकॉज यू आर अ क्षत्रिय, राइट? सो व्हेन कृष्ण, जब अर्जुन नहीं माना तो पूरी भगवत गीता बोली गई। और जब पूरी भगवत गीता सुनने के बाद देन व्हाट अर्जुना सेड, करिष्ये वचनम तवा, आई विल एक्ट अकॉर्डिंग टू योर इंस्ट्रक्शंस। दिस इज अनुकूल, एक्टिंग एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, दैट इज अनुकूल, फेवरेबल वे टू सर्व कृष्ण। भक्ति क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, अपने लिए, अपने घर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी नेशन। नो, इट्स फॉर कृष्णाज इंटरेस्ट। अर्जुन कैसे बना? इतना बड़ा भक्त कैसे बना? नॉट बाय स्टडिंग वेदांता और वो सब, जस्ट बाय फाइटिंग, जस्ट बाय फाइटिंग फॉर कृष्णा। बिकॉज कृष्णा ने कहा लड़ो, एनीवे मैं इन सबको खत्म कर चुका हूँ और तुम लड़ो इनके लिए, मेरे लिए लड़ो। एंड देन यू, दैट इज अनएलॉयड, अनएलॉयड भक्त विदाउट ज्ञान एंड कर्म। ज्ञान अभी क्या है? हमारी कौन सी भक्ति है? कौन सी? मिश्र वी आर मिश्र भक्त है ना। ये तो वी आर अलॉयड डिवोटीज, और मिश्र भक्त मिक्स्ड डिवोटी। किससे मिक्स्ड है हमारी भक्ति? एनी आइडिया? काम, काम मिश्र भक्ति। अभी ज्ञान Swarth. कर्म। I was thinking हाँ Swarth, हाँ but yeah. हाँ, काम मिश्र भक्ति। अभी तो हमें कर्म, अभी तो इस श्लोक में तो क्या बोला है? ज्ञान कर्म अनावृतम, ज्ञान और कर्म के बिना। अभी तो कर्म के लेवल पे भी नहीं है, अभी तो काम के लेवल पे है कि काम पहले हटेगा। काम, काम से ही हमें इतनी ज्यादा है अटैचमेंट, तो भी उसके बाद सेकेंड लेवल आता है, कर्म के साथ अटैचमेंट होती है कि जो मैं कर रहा हूँ मुझे वही करना। जैसे ही मेरी सर्विस चेंज हुई, आई विल बी बैक्ड ऑफ, आई कांट डू दिस, राइट? अभी वो लेवल तो बहुत दूर आएगा। उससे पहले तो अभी तो काम मिश्र भक्ति है, हमें साथ साथ थोड़ी लस्ट, हमें थोड़ा अपने सेंसेस को भी ग्रेटिफाई करना। तो दैट इज लस्ट। और लस्ट किसकी फॉर्म में आती है? डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ अफेक्शन। हमें लगता है हाय ये तो मेरी अफेक्शन है, बट दैट इज एक्चुअली लस्ट। द ट्रू कृष्णा प्रेम क्या है? इज डूइंग वट एवर प्लीजेज कृष्णा, इवन इफ वो मटेरियली इनसिग्निफिकेंट लगे। जैसे मैंने बताया ना कि वो बिन्स, जन्माष्टमी पे बिन्स ऐसे भर जाती हैं। एंड आई हैव सीन सम डिवोटीज, इवन टेम्पल वाइस प्रेसिडेंट, ही वाज क्लीनिंग अप द बिन्स, वेयर एज अदर पीपल आर जस्ट doing, everyone is doing their own service, I'm not denying that, but even if कोई materially insignificant service भी होती है ना, if it is pleasing Krishna, then yes, that shows our prem for Krishna, not for ourselves. Whatever we are doing, we are doing for Krishna, right? That is unalloyed bhakti. अब क्वेश्चन आ सकता है फिर, अनफेवरेबल भक्ति। अनफेवरेबल भक्ति क्या है? when we are doing, as I said, okay, sense gratification, that is unfavorable भक्ति। बोलते हैं ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत। हमेशा जो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये हमेशा अशांत रहेंगे। चैतन्य चरितमृत में है ये।
जितने भी भुक्ति क्या है, प्लेजर सीकर्स, जितने भी कर्मी हैं, बोलते हैं ना ये तो कर्मी है, जिसको जो पैसा कमाता है अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। भुक्ति और मुक्ति, मुक्ति क्या है, जो लिबरेशन, जो ज्ञानी है, जो ब्रह्मन में विलीन होना चाहते हैं, जो मटेरियल वर्ल्ड से निकलना चाहते हैं, वो है, वो भी वो भी शांत रहते हैं। क्यों? दे विल अगेन, क्या होगा, मर्जिंग इनटू द ब्रह्मन आफ्टर सम टाइम, दे विल फॉल बैक, राइट। भुक्ति वाले, दे वांट टू एंजॉय दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट, एंड दे ऑलवेज टॉक अबाउट मटेरियलिस्टिक थिंग्स। प्रभु वहाँ पे लैंड एंड वो पैकेज निकला है, लैंड एंड हाउस का, वहाँ पे आपने देखा हमेशा जो मटेरियलिस्टिक बातें करे वो भुक्ति, देन मुक्ति, एंड देन सिद्धि। सिद्धि क्या है, जो मिस्टिक पावर्स, ये जो हमारे कुंभ में निकलते हैं बाबाज जितने भी, ये देखा थोड़ी सी प्रोवोकेशन पे दे जस्ट स्नैप, राइट। सो दे आर ऑलवेज अशांत, दैट इज व्हाई ऑल दीज आर अनफेवरेबल टू भक्ति। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, काम, they are unfavorable to bhakti. Bhakti should be pure bhakti, pure love for Krishna, nothing else, right? So if we have unalloyed pure, Parikshit Maharaj was therefore the highest benefit is done to one's family simply by becoming the unalloyed devotee of the Lord. That is why Krishna protected Parikshit Maharaj, and this is what Brahmanas were saying, कि he is a first class devotee, he is unalloyed devotee of the Lord. और वो क्या आते हैं, they came as यहाँ पर था ना, आई थिंक इस वर्ष में था, पिछले में था, कि- Representatives of Krishna, right? हाँ, representatives of Krishna, yes. So they don't come just because of their karma, they came for the mission of the Lord, to carry it forward. All right, so we'll stop here. Next verse we'll read next time. 18th, 19th, we'll try to cover it. Any questions, comments, correction? All good? Well, I have one, but I don't know how to frame it. So Parikshit Maharaj, when he, of course, I completely understand and respect that he was, of course, the unalloyed devotee, and he was personally protected by Krishna himself. But after he was born, um, he also had material opulences, like you Mm, know, घोड़े थे, गाड़ी थी, whatever, mm, 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 chariots and mm, all that. mm, mm, So I think somewhere in the first verse you mentioned that unke paas, I can't remember what sentence it was, but it was like unke paas um, material चीजें नहीं होती हैं, like you mentioned. mm, mm. नहीं, ऐसा मटेरियल तो चीजें नहीं नहीं, है। क्या कहते हैं, सुख सुविधाएं नहीं होती हैं. दैट्स नॉट नेसेसरी माता जी। सुख सुविधाएं, इवन भगवत गीता 9.2 में क्या बोलते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। भक्ति इज परफॉर्म जॉयफुली, सुसुखम, Mm. राइट। दैट भक्त इज ऑलवेज जॉयफुल एंड बड़े सुख सुविधा के साथ, दैट इज वन पॉइंट, राइट, ऑफ डूइंग भक्ति। Mm. नाउ पैसा होना इज वन थिंग, एंड पैसे के साथ अटैचमेंट होना इज अनदर थिंग, Yeah. राइट। Mm. सो ही वाज राजा, देयर वर लॉट्स ऑफ राजा। युधिष्ठिर महाराज, व्हेन ही Mm. केम टू नो के कृष्णा हैज लेफ्ट, व्हाट ही डिड, Yeah. ही जस्ट वॉकड ऑफ। उन्होंने अपने Mm. भाई को भी नहीं बुलाया, भीम अर्जुन सुनो मैं जा रहा हूँ, नो, ही जस्ट वॉकड ऑफ। Mm. उनको देखा वॉक ऑफ करते हुए, भीम वॉकड ऑफ, अर्जुन वॉकड ऑफ, एवरीवन वॉकड ऑफ अलोन। दैट Mm. वाज देयर रिनंसिएशन। Mm. they just walked off because they said कि okay, Yeah. कृष्णा ही नहीं रहे इस planet में तो we have nothing to do. सेम वे परीक्षित महाराज, जैसे ही वो हुआ, वो तक्षक वो उसको बड़े आराम से उसको रिवर्स कर सकते थे, बट ही Mm. डिड नॉट। ही जस्ट लेफ्ट एवरीथिंग स्ट्रेट अवे। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि अच्छा मुझे हैंड ओवर तो देने दो, अपने बेटे को बताने दो क्या है सारा, वो थोड़ा बताने दो, नो, जस्ट वॉकड ऑफ। और देयर आर मेनी सच किंग्स। अभी हम उसमें पढ़ रहे हैं भगवत भक्ति वैभव में, ओके, कौन है वो, किंग,
अंगा, वेना, किंग वेना के फादर किंग अंगा, ही जस्ट वॉकड ऑफ इन द डेड ऑफ द नाइट, बिना किसी को बताए, किसी को पता नहीं चला, और वो ही जस्ट वैनिश्ड। हम्म, दैट इज द लेवल ऑफ रेनउंसिएशन। बड़े बड़े राज, दैट इज व्हाई दे कॉल्ड राज ऋषि। तो पैसा होना, ऑपुलेंस होना, नो प्रॉब्लम, बट अटैचमेंट इज बैड। और वो कम पैसे वाले की भी अटैचमेंट हो सकती है और ज्यादा हो सकती है, राइट। हम्म, तो अटैचमेंट इज, अब जैसे मेरे हमारे जैसे मेरे जैसे लोग, घर है यहाँ पर, बट टेम्पल, टेम्पल में इतना कुछ है, बट वी सेड के नहीं, घर घर ही ठीक है, बड़ा घर है, अटैचमेंट, अटैचमेंट टू द yeah, हाउस। वेयर एज कई इतने अमीर अमीर हैं, दे हैव लाइक टेंस ऑफ प्रॉपर्टीज, बट दे आर स्टेइंग क्लोज टू द टेम्पल इन अ स्मॉल क्रैम्प्ड हाउस। हम्म, That what it means, they have no attachment to the wealth, and they, वो, मैं बहुत सारे डिवोटीज को जानता हूँ जो दो दो तीन तीन ट्रिप्स लगाते हैं इंडिया के, धाम हम्म, यात्रा अभी गए हुए थे जून जुलाई में, रथ यात्रा पे। दे डोंट केयर व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअलिटी, वो पानी, पानी की तरह पैसा बहाते हैं। हमारे साथ उल्टा है, हम स्पिरिचुअलिटी में True. पानी वो खींच लेते हैं, और बाकी जगह पे हम नहीं सोचते हैं, कभी कैफे पे जाएं या कहीं पर जाएं, देयर वी स्पेंड लाइक एनीथिंग। Yes. When it comes to charity and all, we just do. So problem is not with the wealth. You can be rich and you can be a devotee, right? Yes. Provided you don't have attachment to the wealth. I know a lot of devotees who do charity more than 10%, Mataji. It is recommended ना कि गृहस्थ को कम से कम 10% करना चाहिए. I know devotees who do more than 10%. Can you imagine? 10%, 10% मतलब अगर आपकी 10,000 सैलरी है तो $1,000 पर मंथ। $1,000 पर मंथ, दैट इज अटैचमेंट टू द वेल्थ। सो पैसा होना इज नॉट एन इम्पेडिमेंट इन बिकमिंग अ डिवोटी। डज दैट मेक सेंस, माता Yes, yes, Prabhuji, absolutely. Yeah. जी? ऑलराइट देन, विल स्टॉप। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। Hare Krishna.